Assalamu alaikum students. Fundamentals of electricity and magnetism. Dr. Farhan Jum is here. In lecture number 7, we will study about the capacitor and its capacitance. A capacitor is a device which store electric charge. Like capacitor can vary in shape and size, but the basic configuration is same. That is, it consists of two conductors carrying equal and opposite charges. इस फिगर में आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मुख्तलिफ तरह के कैपेसिटर नज़र आ रहे होंगे। इनको हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि एक प्ले कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और अ, अ, इस तरह का होता है। और इसकी कैपेसिटर हैव मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जांपल, इट यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Number two, delaying voltage changes when coupled with resistor and filtering out unwanted frequency signals. Rectifier circuits, they are used and filtered the ripple in the DC output. Also, it is used for forming resonant circuits and making frequency dependent and independent voltage divider when combined with the resistor. तो कैपेसिटर के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये इनको यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज फॉर द स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Charging and discharging of a capacitor. Simple example of capacitor is consist of two conducting plates of area A, and the separation between the two plates is represented by the D as shown in the figure 2. Inert charge state the charge on either one of the conductor in capacitor is zero. But when we apply some external voltage source, बैटरी अप्लाई करेंगे, इनके दो इनको हम चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी. ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस a charge Q is moved from one conductor to the other, one giving one conductor a positive Q charge and another conductor a negative Q charge. Potential difference is created with the positively charged conductor at the higher potential than the negative charge. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हाई पोटेंशियल है यहाँ एज कम्पेयर टू नेगेटिव Q, and denote that whether the charged or uncharged. Net charge on the capacitor is zero. ठीक है, ज़ीरो होता है कि चार्ज चाहे वो अनचार्ज स्टेट में है जब भी ज़ीरो है, और चार्ज स्टेट में भी है. नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, वो ज़ीरो. One capacitor discharges when conducting path is provided between the plates. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला ड्राइव करेंगे. सेम पैरेलल कैपेसिटर is connected with the potential difference V. An electric field is created between the positive and negative charges. क्योंकि one plate is negatively charged, another plate is positively charged. Distance between the two plates is D, and A is represented here the area of these plates. So from experiments, it is clear that the amount of charge Q stored in a capacitor is linearly proportional to the change in potential difference, the electric potential difference between the plates. So we can write as Q is directly proportional to delta V. और अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में लेके आए तो हेयर भी है एक सी कैपेसिटेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा which is a positive proportionality constant called the capacitance. Physically, capacitance is the measure of the capacity of a storing electric charge for a given potential difference. तो इसको हम define कर सकते हैं. The charge stored in one of the capacitor plate per potential difference of battery is called the capacitance of a capacitor. Unit is farad. कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड है, और कैपेसिटेंस
के यूनिट्स को भी हम फैरेड को भी डिफाइन कर सकते हैं. द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैरेड when 1 coulomb charge is stored in one of the capacitor by applying potential difference of 1 volt. So 1 farad F से रिप्रेजेंट करते हैं फैरेड को, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट या इज इक्वल टू C over V. A typical capacitor is in picofarad. Picofarad में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 raised to power minus 12 को पिको शो करता है, और 2 मिलीफैरेड 10 raised to power minus 3. इसके अलावा माइक्रोफैरेड को भी हम यूज़ कर लेते हैं. माइक्रोफैरेड में भी कैपेसिटर्स होते हैं. तो फिगर 3 शोज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर. सिंबल इसका पैरेलल प्लेट्स अगर किसी सर्किट में लगे हों तो पैरेलल लाइंस हों तो ये शो करते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ है, या कभी कभी सर्किट्स में इस किस्म का भी सिंबल होता है. तो फॉर अ पोलराइज्ड फिक्स्ड कैपेसिटर व्हिच हैज अ डेफिनेटली पोलैरिटी, तो फिगर 3 sometime is used for that representation in a electronic circuit diagram. So factor which affects the capacitance. The capacitance depends on the following factors. Number 1 is the area of the plate, यानी कि जो एरिया है प्लेट का, दोनों प्लेट्स का सेम होता है और कम या ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस पे इफेक्ट होता है. मीन्स लार्जर प्लेट एरिया इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. नंबर 2 है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है, इनके दरमियान डिस्टेंस d है. d को डिक्रीज करने से स्मॉलर द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. थर्ड वन है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. अगर एयर एक मीडियम है, उसके बजाय हम यहाँ पे कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें, तो उसमें कैपेसिटेंस और कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगी. नंबर इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे कैलकुलेट कैपेसिटर को कैसे कैलकुलेट करें. फार्मूला तो हमें इसका पता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V है. तो अगर कोई कैपेसिटर हमें की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं यहाँ पे. तो पैरेलल सिंपल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अलावा स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम द चार्ज ऑन द प्लेट. नंबर 2 स्टेप में हम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग द गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ ये अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स इन टर्म ऑफ द चार्ज Q. After determining the electric field E, we will calculate the potential difference V between the plates. Q आ जाएगा और V अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो C कैलकुलेट कर लेंगे by using this formula. Now apply these steps to determination of the capacitance of parallel plate capacitor. Here two metallic plates of equal area A separated by a small distance D. इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, D है. एरिया इन प्लेट्स का A है, ठीक है. और पॉजिटिव Q चार्ज है टॉप प्लेट पे, बॉटम प्लेट पे नेगेटिव Q चार्ज है, और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहेंगे, एजिस पे फ्रिंजेस बनते हैं, तो इस किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है कि ये एजिस हैं. एज इफेक्ट है द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द एजिस आर कॉल्ड द फ्रिंजिंग फील्ड्स. तो लेकिन इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसी फील्ड नहीं क्रिएट करते, हम यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करते हैं. आइडियलाइज ज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और स्ट्रेट लाइन से हम इसको शो करते हैं, ठीक है. तो इस गाउसियन सरफेस यहाँ पे हम इस कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लोग यहाँ, क्योंकि मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पिल बॉक्स. मींस कि ये एक बॉक्स है, उसका सिर्फ फ्रंट फेस यहाँ पे शो किया हुआ, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है. तो ये यहाँ पर फ्रंट फेस से हमने इसमें A प्राइम यहाँ पे शो करा है इसका एरिया, एंड क्लोज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट. तो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर यूजिंग द गॉसेस लॉ.
तो गॉसेस लॉ की यहाँ पे इक्वेशन हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट क्लॉज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू. दिस इज द गॉसेस लॉ where q is a charge contained within the Gaussian surface as shown in the figure 2. The magnitude of the electric field is constant. इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है इस बॉक्स में. तो ई डॉट डी इज इक्वल टू यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल इनके मैग्नीट्यूड और कॉस ज़ीरो आएगा, तो ई ए इसकी वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की. तो हम ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में हम जब पुट करेंगे तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोल्व यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है फर्स्ट स्टेप में. E इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, where q is the charge and a is the area of the plate. Now for the calculation of the potential difference, we will use this equation. Vf minus Vi is equal to minus I2f E dot ds. तो इंटीग्रेशन evaluated along the path from one to another plate. तो इसमें let it positive plate to negative plate. तो E यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के दरमियान है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उस तरफ है और मूवमेंट भी उसी तरफ ही हो रही है ds. तो दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर इसके अलावा Vf माइनस फाइनल सेम change in potential is also negative. It is equal to the potential difference between the plate. So यहाँ पे Vf माइनस Vi is equal to माइनस V है. तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करेंगे वैल्यूज इस इक्वेशन में तो ये V माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और V इज इक्वल टू आई टू एफ ई डॉट डी एस. और ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया सेम डायरेक्शन, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कोस ज़ीरो ही डी आ जाएगा इसका आंसर. पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पे कैलकुलेट कर लिया ई डी. Now we will calculate the capacitance of the parallel plate capacitor by putting the value of V from equation 2. V E की वैल्यू V इज इक्वल टू ई डी अभी हमने कैलकुलेट किया ना, V इज इक्वल टू ई डी. उसमें हम E की वैल्यू जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाय द D, इसको हम सॉल्व कर लेंगे Q ओवर B के लिए. ठीक है, Q ओवर V को एक साइड पे लेना. बाकी क्वांटिटीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वेश्चन आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी. ए इज द एरिया ऑफ द plates, D is the separation between the two plates, epsilon naught is the permittivity of the free space. So we know that Q over V is equal to C. कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कैलकुलेट कर लिया हमने, जिसमें एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. हेयर वी यूज एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स हम चेंज करेंगे के 10 वैल्यूज़ वही है लेकिन फैरेड पर मीटर और पिको फैरेड के 10⁻⁻12 पिको के इक्वल होता है पिको फैरेड पर मीटर. ये इस कैपेसिटेंस के कैलकुलेट करने में ये यूनिट्स हमें यूज़फुल हैं एज कंपेयर टू दिस यूनिट्स, क्योंकि हम प्रीवियसली हम ये यूनिट्स यूज़ कर रहे थे. तो यहाँ पर आपके लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है स्टूडेंट्स के आपने फिज़िक्स वॉल्यूम 2 हॉलिडे रेजनिक एंड क्लेन से ये टॉपिक्स को स्टडी करना है. कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ऑसिलेटिंग स्फीयर. इसके अलावा आपका होमवर्क है फॉर द विच यू विल सबमिट ऑन द गूगल क्लासरूम, दैट इज द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चैप्टर के फ्रॉम द वॉल्यूम. नंबर 1 सैम्पल प्रॉब्लम है. अ स्टोरेज कैपेसिटर ऑन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM chip has a capacitance of 0.055 picofarad. If it is charged to 5.3 volt, how many electrons are there in on its negative plate? So इसके लिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है FSC में.
फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी Q इज इक्वल टू कैपिटल N ई इज़ अ चार्ज, कूलम चार्ज। तो N के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो N इज इक्वल टू Q ओवर वी। Q की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है C डेल्टा V ओवर E। C कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है 0.055 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता है 5.3 वोल्ट, वो भी हमने यूज़ कर लिया। ये चार्ज की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ वेरी स्मॉल नंबर, a speck of household dust, so tiny that it is essentially never settle, contains about 10⁻17 electrons। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारी सैम्पल प्रॉब्लम जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। व्हाट मस्ट बी द प्लेट एरिया इफ द कैपेसिटेंस इज टू बी 1 फैरेड। तो इसमें एरिया कैलकुलेट करना है प्लेट एरिया का, तो वो फार्मूला हमें पता है सी डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1.1 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर मोर देन 10 किलोमीटर ऑन एच। सो इस तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो फार्मूला है वो रिलेटेड टू द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, वो आप लोग स्टडी कर लेंगे। इस यहीं से आपने रीडिंग असाइनमेंट मैंने दिया स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।